Hello, my dear kids. Now we are going to start chapter 3 from your IM Olympiad workbook for grade 6, and the chapter name is number play. Kaprekar constant. Okay, so this constant I will explain with the question. So these type of many things I will explain with the question. So please take your notepad and pen with you. Then you can and please write down what I am telling you between the questions. Okay. So first one is the smallest 3-digit number formed by using the digit of Kaprekar constant. Each only once such that unit place digit is 6. Okay. So first thing is that what is Kaprekar constant? Very first I will tell you that Kaprekar constant value is 6174. How this value come? Okay. ये value आती कैसे है? Let me explain it to you. सो काप्रेकर कांस्टेंट को समझने के लिए हमें कोई भी 4 डिजिट का नंबर लेना है, कोई भी 4 डिजिट लेने नंबर की, जैसे मैंने 3, 5, 2, 4 ले लिया। अब इस डिजिट को आपको क्या करना है, ग्रेटर नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 5, 4, 3, 2 ऑफ दिस डिजिट एंड स्मॉलेस्ट विल बी 2, 3, 4, 5 and then subtract both of them. 12 minus 5 7 and 2 minus 12 minus 4 8 here. This is 3 minus 3 0, 5 minus 2 3. This number again repeat this step. इस नंबर से फिर ग्रेटर नंबर बनाइए, दैट इज 8703 एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, दैट विल बी 0, 3, 7 and 8. 5, 9 minus 7 2 and then 7 minus 9 minus 7 2, 6 minus 3 3 and 8 again. Then again repeat this number into the ascending and descending order, larger and smaller. 8 5 3 2 2 3 5 8. Then again subtract 12 minus 8 4. Here 2 12 minus 7 5 7. Here 4 minus 3 1 and then 8 minus 2 is 6. Now you get 6174. Okay. जब तक 6174 वैल्यू नहीं आती तब तक हम इन नंबर को सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, अरेंज करके ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके. ओके, देन वी विल गेट आफ्टर सम स्टेप्स वी विल गेट 6174 एंड हेयर द कैलकुलेशन इज कंप्लीट एंड दिस कांस्टेंट, दिस नंबर इज कॉल्ड 6174 Kaprekar constant number. ओके, सो Kaprekar is actually saying that कि कोई भी 4 डिजिट लीजिए आप, अगर उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन आफ्टर सम स्टेप्स हमेशा 6174 रिजल्ट में आएगा ही आएगा, एंड दैट वैल्यू इज नोन एज Kaprekar constant value. Okay, I hope now you get it. Now they are saying the smallest 3 digit number formed by using the digit Kaprekar constant. अब Kaprekar constant ये है 6174. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है तो हमें स्मॉल 3 डिजिट लेनी होगी. ओके, एंड दे ऑल्सो वांट ओनली वंस वी कैन यूज द डिजिट. सो 1 4 और 6 ये क्या है, 3 स्मॉलर डिजिट है एंड 6 विल बी एट द वंस प्लेस. तो 6 वंस प्लेस पे आनी चाहिए, 3 डिजिट नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, 4 इधर और 1 इधर. 1 4 6 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, इज द राइट आंसर हेयर. नेक्स्ट इज Which of the following clock timing is palindromic? Palindromic का मीनिंग क्या होता है? Palindromic means that कोई भी नंबर चाहे हम बैकवर्ड पढ़े चाहे फॉरवर्ड पढ़े वो हमेशा सेम ही आएगा. लाइक अगर मैं इंग्लिश लेटर्स की बात करूं, कायक, सो KAYAK, और अगर मैं यहां से पढ़ू तो KAYAK. ओके, when we read any number which is from backward and forward, it would be read same. Then it is called palindromic number. And here you can see that 1010 but backward से पढ़ेंगे तो 0101, तो this is not possible. 619 और 916 not possible. 1212 2121 not possible. Here you can see that 1221 और यहां से पढ़ेंगे तो again 1221. Okay, तो this number can be read from both sides same. 1221 1221. So D is right answer. This is called palindromic number. Okay. Next, in the given number grid, the difference of the greatest and smallest number in the supercell is. पहली बात तो आपको ये फाइंड करना है कि सुपरसेल होते क्या हैं. उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि जो ग्रेटेस्ट सुपरसेल है और जो स्मॉलेस्ट नंबर सुपरसेल है उसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा.
ओके, सो पहले सुपरसेल फाइंड करते हैं. व्हाट इज सुपरसेल? सुपरसेल क्या होता है? सुपरसेल का मतलब है कि जब अभी आप ग्रिड चेक करते हैं, मैं यहाँ पर 3 ग्रिड्स बना रही हूँ. ओके, यहां पर मैं आपको सिंपली बताती हूँ छोटा सा एग्जांपल देके. दैट इज 1 5 4 3 7 9 and this is 10 and this is 2 and this is this can be 6. ओके, तो अब सुपर सेल क्या है यहाँ पर? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि सुपर सेल क्या होता है कि वो सेल जिसके नेबर सेल से उसका नंबर बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर सेल. ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 का नेबर सेल 7 है, तो दिस कैन नॉट बी सुपर सेल. बट 7 में आते हैं तो 7 के लेफ्ट साइड 1 है, डाउन साइड में 3 है और राइट साइड में क्या है 9 है. तो 9 क्या है 7 से बिगर है, इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है. 9 के लेफ्ट साइड में 7 है एंड डाउन साइड में 10 है, तो 9 भी सुपर सेल नहीं है. बट अगर हम 10 के पास आते हैं तो 10 के अपवर्ड में 9, बैकवर्ड में 3 और नीचे क्या है 2 है. तो अपने नेबर्स में से सबसे ज्यादा नंबर, सबसे बड़ा नंबर यही है 10, तो इसलिए ये क्या है सुपर सेल है. ओके, अगर मैं 5 पर आती हूँ, 5 में देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में 1 है, राइट साइड में 3 है और नीचे 4 है. तो इसके तीनों साइड्स के जो नेबर है वो क्या है स्मॉल है देन 5, तो 5 क्या हुआ सुपर सेल. ओके, सुपर सेल ऐसे फाइंड करते हैं कि हमारा जो नेबर है, नेबर नंबर अगर आपके नंबर से छोटा है देन यू आर सुपर सेल. नेबर में चारों साइड के नेबर काउंट होते हैं. अब 5 के इधर कोई नहीं है तो हमने 3 साइड के नेबर काउंट किए, बट 3 के हम चारों साइड के नेबर काउंट करते हैं, बट 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए सुपर सेल नहीं है. ओके, अगर हम 6 पर आते हैं तो 6 के लेफ्ट में क्या है 4 है, राइट में 2 है और ऊपर क्या है 3 है. तो ये सब नंबर क्या है 6 से छोटे हैं, इसलिए 6 क्या होगा, दैट इज सुपर सेल. सो आई होप नाउ यू गेट इट दैट हाउ वी कैन फाइंड सुपर सेल. सो अब हमारे ग्रिड पे आ जाइए जो कि ओरिजिनल ग्रिड है, दैट इज गिवन हियर. अब इसमें सुपर सेल क्या है देखो, 2 3 7 2, राइट साइड का नंबर 5 7 इससे बिगर है, तो दिस इज नॉट सुपर सेल. अब 5 7 6 2, बट इसका राइट साइड का नंबर 6 3 2 8 है जो कि इससे बिगर है, सो दिस इज नॉट अ सुपर सेल. अब यहाँ है 6 3 2 8, इसमें राइट साइड में 3 8 5 9 है जो कि स्मॉलर है, लेफ्ट साइड वाला नंबर भी स्मॉलर है, बट नीचे वाला नंबर इससे बिगर है. ये 6 3 2 9 है जबकि ये 6 3 2 8 है, तो इसलिए ये क्या हुआ सुपर सेल नहीं है. दैट इज 3 8 4 9 5 9 इज नॉट अ सुपर सेल बिकॉज इसका लेफ्ट साइड का नंबर इससे बिग है. यहां पर आते हैं 7 3 6 2. 7 3 6 2 में अबव साइड का नंबर स्मॉलर है 2000, नीचे वाला नंबर भी स्मॉलर है 6000 और राइट साइड वाला नंबर भी स्मॉलर है, दैट इज 5000 समथिंग. सो दिस कैन बी अ सुपर सेल. 7 3 6 2 इज अ फर्स्ट नंबर ऑफ सुपर सेल. 5 8 3 2 नहीं है बिकॉज लेफ्ट साइड का नंबर बिग है. 6 3 2 9 पर आइए. 6 3 2 9 का अबव सेल 6 3 2 8 है, दैट इज स्मॉलर. लेफ्ट साइड 5 8 3 2, ये भी स्मॉलर है. राइट साइड 4 8 9 3, ये भी स्मॉलर है. 6 3 2 7 भी 6 3 2 9 से स्मॉलर है. इट मीन्स 6 3 2 9 भी क्या है सुपर सेल. नेक्स्ट वन 4 8 9 3, दिस इज नॉट सुपर सेल क्योंकि लेफ्ट साइड का नंबर बड़ा है. 6 8 6 2 का अबव नंबर बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सुपर सेल. 5 3 2 4 में लेफ्ट साइड दोनों साइड के नंबर बड़े हैं, तो ये भी सुपर सेल नहीं है. 6 3 2 7 में ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं है. 6 3 2 8 3 6 2 8, दिस इज नॉट अ सुपर सेल बिकॉज लेफ्ट साइड अबव बिलो ऑल नंबर्स आर बिग. 8 3 2 7, इसका राइट साइड में नंबर है 8 4 2 7, सो दिस इज नॉट अ सुपर सेल. 8 4 2 7, इसका लेफ्ट साइड का नंबर भी छोटा है, above number is 5 3 2 4 and right side number is 6 2 9 6, so this number is bigger than their neighbor, so this is a supercell number 8 4 2 7. now 6 2 9 6 is not supercell because का previous number जो है वो bigger है. 8 7 3 5 में left side number is 6000 something and above number is 3000 something, so this is bigger than the both neighbor, so this is also supercell. अब हमारे पास 4 सुपरसेल आ चुके हैं. नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. सो द ग्रेटेस्ट सुपरसेल नंबर इज द 8735 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 6329. सो 8735 and 6329. Then which one? What is the difference between them? 15 minus 9 is 6. 2 minus 2 0, 7 minus 3 4 and 8 6 2, 2406 is the difference between them. Answer C. I hope you get it how we can find supercell, then you can easily solve the question.
Next question is starting from 24, find the number of steps required for the Collatz conjecture of to return 1. So Collatz conjecture क्या है? देखो Collatz conjecture के रूल क्या है, पहले तो आपको वो जानने चाहिए कि what is Collatz conjecture. Actually Collatz conjecture means that अगर कोई भी नंबर इवन नंबर से स्टार्ट होता है, ओके, लाइक अगर मैं 6 नंबर ले रही हूँ, दिस इज इवन नंबर. अगर कोई नंबर जो कि गिवन नंबर है क्वेश्चन में, इफ इट इज इवन नंबर देन इट विल बी डिवाइड विद द 2. ओके, नंबर n ले लीजिए, n इज इवन नंबर तो n 2 से डिवाइड होगा. बट अगर ये ऑड नंबर है, इफ n इज ऑड, ठीक है, अगर n इज इवन तो n बाय 2 होगा, और n इज ऑड देन क्या होगा, 3 से पहले ये मल्टीप्लाई होगा नंबर n एंड देन रिजल्ट जो है उसमें 1 ऐड होगा. ओके, पहले 3 इंटू n होगा देन प्लस 1, तब इसे बोलते हैं हम Collatz conjecture. ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन में Collatz conjecture स्टेप गिवन है तो हमें पहले अगर इवन नंबर गिवन है देन इट विल बी डिवाइड बाय 2. अगर नंबर ऑड हो गया है देन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 1. ओके, सो लेट्स चेंज द सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप. Here number given is 24. Okay, 24 is a even number. Even number है, then what we will do? We will divide by 2. 24 divided by 2 is 12. Then 12 again even number. Then 12 divided by 2 is 6. 6 again even number. It will divide by 2. Then it is 3. देखो थर्ड स्टेप में 3 आ गया. 3 क्या बन गया, ऑड नंबर. ये ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई एंड देन एड 1. 3 3 are 9 plus 1 10. 10 again क्या आ गया, इवन नंबर. ओके, सो इट विल डिवाइड बाय 2. 10 2 5. 5 क्या आ गया, ऑड नंबर. तो नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 3 प्लस 1, 5 3 are 15 प्लस 1 16. 16 अगेन क्या हो गया, इवन नंबर, देन इट विल डिवाइड बाय 2. 2 8 are 16. 8 अगेन इवन नंबर, देन 2 से डिवाइड होगा, देन 2 4 are 8. 4 is again even number, divide by 2, that will be 2 2s are 4. 2 and 2 is again even number, divide by 2, get 1. So हमें 1 आने तक इस स्टेप्स को करना था. टोटल कितने स्टेप बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. टोटल 10 स्टेप्स में आकर 24 नंबर क्या बन गया है, 1. ओके, बाय द step of Collatz conjecture. So how many steps are required from starting from 24 and became 1? Then it will be 10 steps required. Okay, total 10 steps, you can see that. I hope you get the question. 10 is right answer here. Next one, the largest 5-digit number and smallest 5-digit number formed by using the digit. Each digit only once used respectively are. तो लार्जेस्ट के लिए बिगेस्ट डिजिट पहले लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल है 5, देन 2, देन 1 एंड देन 0. एंड स्मॉलेस्ट विल बी, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ही बनानी है. ओके, सो वी कैन नॉट स्टार्ट इट विद 0 बिकॉज 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये 4 डिजिट काउंट होगा. देन वी विल टेक 1, देन 0, आफ्टर दैट 2, देन 5, देन 7. ओके, तो what will be the digit, 7 5 2 1 0 1 0 2 5 7. A is our answer. A is right answer here. Next one, if each digit of a number must be unique and digit must be 1 5 6 9 8, then which of the following can be the number? देखो unique means one time use. Okay, so क्या क्या नंबर बन सकते हैं, हम स्टेप्स में चेक कर लेते हैं. 1 5 6 9 8 can be possible. 1 to 1, 5 to 5, 6 to 6, 9 to 9, 8 to 8. और सारे नंबर वन टाइम यूज हो रहे हैं, दे आर यूनिक नंबर, राइट. और उसके बाद ये वाला नंबर 6, yes we have 6, 5 we have 5, 1 we have 1, 9 we have 9 and 8. So इसमें भी सारे नंबर्स हैं और यूनिकली यूज हैं. नेक्स्ट वाला 1 1 9 9 8 8 5 5 6 एंड 6. सो यहाँ पर भी सारे नंबर यूज हैं एंड यूनिक फॉर्म में यूज है, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल ऑफ दीज नंबर कैन बी पॉसिबल. डी इज राइट आंसर. Next question is, if you start with the number 4 3 2 1, how many if you start with the number 4 3 2 1, how many iteration of the Karpikar process will it take to reach 6 1 7 4? फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको प्रोसेस बता चुकी हूँ. वी विल डू इट अगेन. 4 3 2 1 नंबर है. फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में.
ओके पहले डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, 4 3 2 1 इज गिवन एंड असेंडिंग ऑर्डर विल बी 1 2 3 4. सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 minus 4 3 and then 1 again 11 minus 3 that is 8. Sorry, 11 minus 4 is not 3, 7, and then 11 minus 3 is 8. Then here 2 minus 2 0 and 4 minus 1 3. Again we will arrange 3 0 8 7. So ascending order will be, sorry, descending will be right first 8 7 3 0. Ascending will be 0 3 7 8. Then subtract 10 minus 8 2. Then here 2 12 minus 7 5. Then 6 minus 3 3. And here 8 is 8 8 3 5 2. Then 8 3 5 2 को फिर से हम ascending और descending में अरेंज करेंगे. That is 8 5 3 2. And then descending order will be 2 3 5 8. Again we will subtract. That will be 12 minus 8 4. Here 12 minus 5 7. Then here 4 minus 3 1 and 8 minus 2 6 6 1 7 4. यहाँ हमारा आ गया है कौन से स्टेप में, 1 2 and 3. ओके 3 स्टेप के बाद we will get the Karpekar constant. So here we get 3 steps for reaching Karpekar constant 6174. So B is right answer here. Next is what is the difference between the smallest and second largest 4-digit palindromic number. 4-digit palindromic number. Okay, smallest or largest. So smallest palindromic will be 1001. Okay, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 4 डिजिट 100 है, बट इट इज नॉट पैलिंड्रोमिक नंबर क्योंकि हम इसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक जैसा नहीं पढ़ सकते. बट हेयर 1001 एंड हेयर 1001 बोथ साइड वी कैन रीड दिस नंबर same. So this is palindromic smallest number and largest will be 9889. Okay, this is 4 digit largest palindromic number because 9889 और अगर backward पढ़ेंगे तो 9889 same number we can read. Now they want difference between them. So what is the difference between them? 9889 minus 1001. That will be 8 8 8 and 8. 4 times 8. A is right answer. Next one, some numbers are marked on a number line below. Identify the missing number and find the sum of P and Q. देखो, between them 2540, 4540. तो this will be 3350. Okay ना? So का difference आ रहा है ना because there is 200 numbers difference. तो middle will be on 100. तो 3350. तो इससे पहले क्या हो जाएगा 3150. This is 3050. This is 2950 and this is 2850. ओके, तो P पर क्या है 2950 एंड Q पर क्या है 3350. और हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर, फाइंड द सम ऑफ PQ. सम 3350 प्लस 2950. Then sum will be 0, 10, 9, 10, 13, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 300. C is right answer here. Next one is which of the following options show the correct way to find the sum of all the number in the given figure. Sum of all the number देखो यहाँ पर 25 कितना है 4 times दिख रहा है 25 4. यहाँ पर 25 5 6. पहले हम 25 काउंट करते हैं सारे. ओके, फर्स्ट सर्कल में 4 25 है. देन हेयर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो 25 कितना है 20 टाइम्स. उसके बाद रहेगा 20 नंबर, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. और 20 कितना है हमारा 8 टाइम्स. दोनों की वैल्यू निकालेंगे और एडिशन करेंगे तो 25 20 टाइम्स और 28 टाइम्स एंड देन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे. ओके, सो बी इज द राइट आंसर हियर. Next will be which of the following option shows the number that in supercell in the box such that the smallest number among its adjoining cell is the least. देखो, अब हमें क्या करना है, पहले सुपर सेल फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम सुपर सेल ही ढूंढते हैं. ओके, 6 और यहाँ पर 7321. तो दिस कैन नॉट बी सुपर सेल क्योंकि सुपर सेल क्या होता है जिसके नेबर सेल्स उससे छोटे नंबर के होते हैं. सो हेयर 7321, यहाँ पर 300,000 समथिंग, दिस इज 6,000 समथिंग, बट दिस इज 9,000 समथिंग. सो दिस इज नॉट सुपर सेल क्योंकि नीचे वाला नंबर बिगर है.
नेक्स्ट 6325, इसका प्रीवियस नंबर बिगर है इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है। नेक्स्ट वन 9232, इसका प्रीवियस सेल है 6325 और नीचे वाला 6374, तो 9232 क्या है, सुपर सेल। नेक्स्ट वन इज 4321, ये सुपर सेल नहीं है बिकॉज 5164 नीचे वाला नंबर बड़ा है। 9876, इसका ऊपर वाला नंबर 7000, प्रीवियस लेफ्ट साइड नंबर 4000, नीचे वाला 4000 और राइट वाला 2000, तो 9876 क्या है, यस दिस इज अ सुपर सेल। नेक्स्ट 2467 नहीं है बिकॉज प्रीवियस नंबर बिगर है। नेक्स्ट वाला 6375 भी सुपर सेल नहीं है बिकॉज अपर नंबर बड़ा है। 5164 जो है इसका लोअर नंबर बिगर है इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है। 4893 में अपर नंबर बिगर है इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है। 3985 जो है इसका प्रीवियस नंबर बड़ा है इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है। 4325 में अपर वन इज बिगर नंबर तो ये भी सुपर सेल नहीं है। नेक्स्ट 7328, इसमें अपर वाला 5000, लेफ्ट वाला 2000, नीचे वाला 1000, तो दिस इज अ सुपर सेल क्योंकि इसके नेबर नंबर्स क्या है, इससे छोटे। 2738 का प्रीवियस नंबर बिग है इसलिए ये सुपर सेल नहीं है। 4672 में नीचे वाला नंबर बिगर है इसलिए ये भी सुपर सेल नहीं है। 7698, इसका अबव नंबर 4000 समथिंग, ये वाला भी 4000 समथिंग और नीचे वाला 3000 समथिंग, तो ये वाला क्या है, सुपर सेल 7698 क्योंकि नेबर नंबर्स क्या है, छोटे। 1638 नहीं है सुपर सेल बिकॉज इसका अबव नंबर बड़ा है। 4893 भी सुपर सेल नहीं है क्योंकि राइट साइड वाला नंबर बिग है। 7213 सुपर सेल है बिकॉज लेफ्ट साइड 4000 समथिंग, अबव वाला 4000 समथिंग और साइड वाला 3000 समथिंग, तो 7213 इज अ सुपर सेल क्योंकि नेबर नंबर तीनों ही छोटे हैं। 3792 जो है वो सुपर सेल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आ गए हैं 5 सुपर सेल्स। अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी सुपर सेल्स हैं उनमें जो एडजॉइनिंग सेल है, एडजॉइनिंग सेल्स मतलब जो उसके साथ वाला सेल है, ओके बिल्कुल साथ वाला सेल जो है ऊपर वाला साइड वाला, उसमें सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, तो 9232 हम फर्स्ट लेते हैं ये वाला सेल 9232, इसमें 6000 और 6000 समथिंग के क्या है नंबर्स, 6K नंबर, 6K, दूसरा भी 6K का नंबर है। 9876 जो है इसमें 4000, 4000, 7000 एंड 2000 तक के भी नंबर हैं, तो ये सुपर सेल ये काउंट नहीं हो पाएगा क्योंकि 9876 में ज्यादा छोटे नंबर हैं। नेक्स्ट वाला 7328 में भी 2000 का नंबर है, इसमें 1638 नंबर है जो इस पूरी ग्रिड का सबसे स्मॉल नंबर है और वो किसका एडजॉइनिंग सेल है, 7328 का, तो 7328 विल बी द राइट आंसर हेयर क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर in the grid is adjoining with the 7328 number, so B is the right answer here. Next is which of the following statement is that true? 34850 lies on the left side of this number. This is false. Why? क्योंकि देखो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा कहाँ होता है नंबर लाइन में, राइट साइड में, और स्मॉलर नंबर कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड में, तो 34845 के लेफ्ट साइड में 850 नहीं हो सकता, दिस इज फॉल्स, वो राइट साइड में होगा। Next is 8375 lies exactly in the middle of this and this number. 8370 और 8382 इनका एग्जैक्ट मिडिल क्या होगा, दोनों के बीच में 12 नंबर का डिफरेंस है, तो 8376 इनका एग्जैक्ट मिडिल होगा। ओके, सो ये 8375 इज ऑल्सो अगेन फॉल्स, बोथ नंबर आर फॉल्स, ए एंड बी, नीदर ए और नोर बी, डी विल बी द राइट आंसर, ना तो ए स्टेटमेंट सही है और ना ही बी। Next, while working with the collage conjecture, if we start the sequence with an odd number, how do we get the next term in the sequence? अगर हम collage conjecture में है और हमारा sequence में odd number आया, I told you that in this we will multiply by number by 3 and then add 1. Okay, multiply the starting number with 3 and then add 1 to the result. C is the right answer here. Next, which of the following option will give a palindromic number if we add the given numbers? अगर हम इन नंबर्स को ऐड करते हैं, ओके, तो पैलेंड्रोमिक नंबर कौन सा दे रहा है, 8412, देखो 4884, 12 13 आएगा यहाँ पर, 132, ओके, 76 और 67 से क्या बन रहा है, 143, 2992 से क्या बन रहा है, 121,
दिस इज द पैलेंड्रोमिक नंबर 121. 121 लेफ्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों में सेम पढ़ा जा रहा है, जबकि 132 नॉट पॉसिबल पैलेंड्रोमिक और 143 भी पैलेंड्रोमिक नहीं है. ओनली पैलेंड्रोमिक नंबर इज 121 बिकॉज बैकवर्ड और फॉरवर्ड पे सेम पढ़ सकते हैं दोनों को ऐड करने के बाद. सो बी इज राइट आंसर. Which number come immediate before 550 200 in the given pattern? पैटर्न में देखिए 50-50 ऐड हो रहा है. ओके, सो 5050 के बाद यहाँ पर 5100 होगा एंड आफ्टर दैट 5150, उसके बाद 5200 आएगा. तो यहाँ पर प्रीवियस नंबर क्या होगा 5200 का? 5150. ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डिजिट सम. Same digit sum which of the following have. So how we can find the same digit sum? Digit sum का मीनिंग क्या होता है? डिजिट को सम करना. 7 plus 2 9 and 5 plus 0 plus 3 is 8. So this is not possible. 6 plus 8 14 है ना, and 5 plus 4 9 plus 5 14. So this is the same number. डिजिट को ऐड करने पर 14 एंड 14 आ रहा है, तो बी विल बी द राइट आंसर हेयर. अदर विल बी नॉट पॉसिबल. इनका भी सम सेम नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा. नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर इन द एडजॉइनिंग फिगर. सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो हेयर यू कैन सी दैट अगेन वी विल काउंट 10 10 के. देख लीजिए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 10 है, 2 3 4 5 6. 6 आर 10 10s और 6 का मतलब कितना? 6 ट्रायंगल्स में 10 10 3 है, तो 6 3 जा 18. तो 18 क्या हो गए? 10s 180. नाउ 20 वाले 1 2 3. 20 वाले ट्रायंगल कितने हैं? 3 और एक ट्रायंगल में 320 है, तो 3 में कितने हो गए? यस 9. तो 9 2 जा 18. अगेन मल्टीप्लाई, देन बट इट इज 180. 180 प्लस 180 इज 360. तो टोटल सम कितना हो गया? 360. ए इज राइट आंसर हियर. नेक्स्ट इज if you start with number 13, then what will be the you get after 4 step of collage sequence. collage sequence में 13 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इवन ऑड नंबर. ऑड नंबर है तो हमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई एंड देन एड 1. 13 3 जा 39 प्लस 1 40. अब इवन नंबर आ गया है. इवन नंबर में हम नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो देन 20. अगेन इवन नंबर आया तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, देन 10. अगेन इवन नंबर आया है तो फिर से क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा. क्या आया? 5. तो फोर्थ स्टेप में नंबर क्या आया? 5. फोर्थ स्टेप में वी विल गेट नंबर 5 इज राइट आंसर. नेक्स्ट इज हाउ मेनी सुपर सेल आर देयर इन द गिवन टेबल. सुपर सेल अगेन देखो, ये है 3000, ये है 7000. दिस इज नॉट सुपर सेल. यहाँ पर 7000, ये वाला 3000 सेल है, ये 31,000 का है, ये 57,000 का है, 21,000 का. तो दिस इज सुपर सेल क्योंकि नेबर सेल सारे छोटे नंबर के हैं. 5729 कैन नॉट बी सुपर सेल बिकॉज 736,000 वाला सेल बड़ा है. 58372 में प्रीवियस सेल भी छोटा है और नीचे वाला सेल भी छोटा है, तो ये सुपर सेल है. 43892 में ऊपर वाला 31,000 का है, नीचे वाला 36,000 का है और ये वाला 21,000 का है, तो 43,000 सबसे बिगर हो गया. तो ये नंबर भी क्या है? बिग, यानी कि सुपर सेल. तो फर्स्ट सुपर सेल ये रहा, सेकंड ये रहा एंड थर्ड यहाँ पर. अगेन 21 वाला नॉट पॉसिबल बिकॉज प्रीवियस नंबर बिग है. यहाँ पर 48,000 भी पॉसिबल नहीं क्योंकि अपर वाला 57,000 नंबर का है. यहाँ पर 56,000 भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज अबव नंबर वाला 58,000 का सेल है. 36,000 वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका ऊपर वाला सेल 43,000 का है. 26 वाला भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज प्रीवियस नंबर वाला 36,000 का सेल है. 26382 26352, लेकिन इसका अबव सेल जो है 48,000 का है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल एज ए सुपर सेल. बट 67,385 जो है, इसमें अबव नंबर 56,000 का है और प्रीवियस नंबर 26,000 का, तो दिस इज ऑल्सो अ सुपर सेल. तो इसमें टोटल ग्रेड में कितने सुपर सेल हैं? 4 सुपर सेल. जो सुपर सेल क्या होते हैं? जिनका नेबर सेल का नंबर उससे छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर सेल. ओके, नेबर सेल कैसे काउंट करते हैं? अप डाउन और लेफ्ट राइट वाला ओनली. ओके, बी इज राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज पैलेंड्रोमिक. 21 फरवरी सेकेंड मंथ है, देन 2012. तो हेयर 2102 2012. अगेन बैकवर्ड पढ़े 2102 2012.
ये जो नंबर है दैट इज पैलिंड्रोमिक डेट, बिकॉज बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये बिल्कुल सेम पढ़ी जा रही है। जबकि 20 मार्च 2003 2030 2003 2030 और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है बैकवर्ड में, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर 2104 2021 ये भी पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, और 2112 2121 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 2112 यहाँ पे 1212 पढ़ा जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पैलिंड्रोमिक डेट। ओनली ए इज पैलिंड्रोमिक डेट, क्योंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में हम इसे सेम रीड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज a book has 22 chapter, each chapter has 16 page, estimate the total number of pages in the highest place value पे estimation करना है। 22 chapter 16 pages, देखो 22 chapters हैं और हर chapter के कितने पेज हैं 16, तो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई 16 2 32, 3 कैरी किया, 16 2 32 प्लस 3 35, 352। ये कौन सी डिजिट है 100 प्लेस डिजिट, और हाईएस्ट प्लेस डिजिट कौन सी है इसकी 100 प्लेस, तो हाईएस्ट प्लेस क्या होगा 352, 350 से ज्यादा हो गया, हाफ से ज्यादा, तो हम इसे क्या करेंगे 400 एस्टिमेशन। सो 400 एस्टिमेशन में आंसर क्या होगा, बी इज राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट वन इज रिया थिंक ऑफ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ 2 डिजिट इज 1 2 इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, विच वन नंबर इज रिया थिंकिंग। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहला तो दोनों का सम क्या है 12, 7 5 12 होता है, 3 9 12, 9 3 भी 12 और 8 4 भी 12। नेक्स्ट है इफ द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इज 3 टाइम द डिजिट ऑफ फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस की डिजिट जो है टेंथ प्लेस की डिजिट का 3 टाइम है, तो 7 5 नॉट पॉसिबल। यहाँ पर उल्टा है, वन प्लेस की जो डिजिट है वो टेंथ प्लेस से बड़ी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर 3 3 9, तो वन प्लेस डिजिट इज 3 टाइम द सॉरी टेंथ प्लेस डिजिट इज द 3 टाइम वन प्लेस डिजिट, तो 93 इज द राइट आंसर हेयर। Next, I am a 5-digit palindrome. I am an odd number. My 1000 place digit is 2 more than the my unit place digit. My 100 place digit is 3 less than my 10 place digit. Identify the number. I am a 5-digit palindrome. फर्स्ट तो हमें फाइंड करना है कि इसमें से पैलिंड्रोम नंबर कौन सा है। देखो बैकवर्ड फॉरवर्ड सेम पढ़े जाने चाहिए। 6 2 3 2 6 6 2 3 6 2 6, तो ये पैलिंड्रोम है। 5 7 2 7 5 5 7 2 7 5, दिस इज पैलिंड्रोम। 3 7 2 7 3 3 7 2 7 3, दिस इज पैलिंड्रोम। 7 9 6 9 7 7 9 6 9 7, दे ऑल आर पैलिंड्रोम नंबर। अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, माई 1000 प्लेस डिजिट इज 2 मोर देन माई यूनिट प्लेस डिजिट। 1000 प्लेस डिजिट इज 2 मोर देन, बट यहाँ पर तो लेस देन है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बी में 1000 प्लेस डिजिट वन प्लेस डिजिट से कितना है 2 मोर देन, यहाँ पर तो 4 का डिफरेंस है, दिस इज नॉट पॉसिबल। सी में 1000 प्लेस डिजिट और वन प्लेस डिजिट में 2 का डिफरेंस है, 5 + 2 7, और फोर्थ में भी 2 का डिफरेंस है, 7 + 2 9, तो सी और डी में से कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट है माई 100 प्लेस डिजिट इज 3 लेस देन माई 10 प्लेस। 100 प्लेस डिजिट इज 3 लेस देन 10 प्लेस, तो यहाँ पर तो 100 प्लेस डिजिट जो है वो 5 लेस देन है 10th प्लेस, और 6 9 में 3 लेस देन है 10th प्लेस से, सो डी इज द राइट आंसर हेयर। ओके, इफ अ बुक कोस्ट 78 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 21 सच बुक्स। 21 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है एंड देन एस्टिमेट करना है आंसर को हाईएस्ट प्लेस पर। सो अगेन हमें हाईएस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग आंसर की वैल्यू निकालनी है। 78 into 21 is that is 1638. Okay, 1638, that is 1000 place value is the highest value. So 1000 place के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1638 है, that is more than 1500, मतलब more than half, तो हम इसे क्या लेंगे एस्टिमेशन थाउजेंड्स में 2000, हाईएस्ट प्लेस एस्टिमेशन क्या होगा 1000 प्लेस का। सी इज राइट आंसर हेयर। यहाँ पर हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का एस्टिमेशन करने को बोला है, हाईएस्ट प्लेस यहाँ पर 1000 है, तो दैट इज 2000 आंसर। Next, 2 players take turn picking number from 1 to 6 and first one to reach the sum of 20 will win. If your opponent just picked the number 3 and the current sum becomes 17, then which number should you pick to win? देखो हमें 20 तक पहुंचना है तब हम विन कर सकते हैं। 20 आना चाहिए, एग्जैक्ट 20 की बात नहीं हो रही। इफ योर सम विल रीच एट 20, ओके 20 तक पहुंच जाएगा तो आप विन कर जाओगे।
अगर 17 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 17 + 2 19, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 17 + 4 कितना बन रहा है, 21 बन रहा है। एंड 17 + 1 क्या बन रहा है, 18। तो अगर मुझे विन करना है अपना नेक्स्ट स्टेप, तो आई विल चूज इन सब में से आई विल चूज 4। देन मेरा एस्टिमेशन बन जाएगा सम 21, जो कि 20 से ज्यादा है, देन आई कैन विन। सो बी विल बी द राइट आंसर ओनली हियर। नेक्स्ट, read the statement carefully and state true false. Sum of digit of largest 4-digit even number is 36. Largest 4-digit even number, that is 9998. और अगर इनका डिजिट सम करते हैं तो 9 + 9 18 + 9 27 + 8 is 35, not 36. Okay, this is false. 1 less than smallest 5-digit number is largest 4-digit number. 1 less than smallest 5-digit number. 1 less than, देखो smallest 5-digit number क्या है, ये 10,000। अगर इसमें से 1 लेस करते हैं तो क्या बन जाएगा, 999, दैट इज द लार्जेस्ट 4-digit नंबर। सो दिस इज ट्रू हेयर। फर्स्ट वन वाज फोर्स की, फर्स्ट वन में देखो इवन 4-digit बोला था लार्जेस्ट, इवन 4-digit क्या है, 998, और यहाँ पर ये ओड 4-digit नंबर है लार्जेस्ट, 999। Largest number that can be formed using the digit 6 4 7 8, each only once is 8746। 8746 जो है वो लार्जेस्ट नंबर बन रहा है इन डिजिट। सो हेयर द लार्जेस्ट नंबर विल बी 8764। तो 8746 जो है वो क्या है, फॉल्स है, ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है, 8764 लार्जेस्ट होगा। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो FTF where it is in B, FTF is here, B is right answer. Next, match the following and select the column. The supercell in the box 40 68 79 89 76 is, इस बॉक्स में सुपरसेल कौन सा होगा, सुपरसेल कौन सा होगा, 40 68 79 89 76। ऑब्वियसली जो बिगेस्ट नंबर है वही क्या होगा, सुपरसेल होगा, क्योंकि इसके अबव नंबर क्या है, दोनों छोटे हैं, दैट इज 89। 89 विल बी द सुपरसेल हेयर। R इज सुपरसेल। The estimate value of 76 is 80. Obviously, estimation जो है। The total number of 2-digit number is, the total number of 2-digit number is, the total number of 2-digit numbers is, total number of 2-digit numbers is 99 minus 9 is 90. So this will be Q. So here R, then P, then Q. R, P, Q. Where it is R, P, Q. R, P, Q is in D. D is the right answer here. 28 is fill in the blank and select the correct option. तो क्या है, blank first is the number of 3-digit even numbers that can be formed by using these digit. तो इनको मिला के हम बना सकते हैं 504, 540 and 450। ये सारे क्या है, even number because they are ending with the 0 2 4 6 8 और again 10। ठीक है, तो this will be even number can be make. So 3 number can be made by this given number. Second is the number of times digit 8 will appear when we write all the numbers from 20 to 100. देखो 20 to 100 नंबर डालेंगे तो हम कौन कौन से नंबर आएंगे, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 और 98। ओके, तो यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पर 8 and 9 टाइम्स तो इसमें रिपीट हुआ। ओके, देन अब किस में रिपीट होगा, 80 से 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 में ऑलरेडी लिख चुकी हूँ और 89। तो यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स यहाँ रिपीट हो रहा है और 9 टाइम्स यहाँ पर हुआ। तो 9 + 9 18 टाइम्स इट विल बी रिपीट। The sum of digit of smallest 3-digit odd number is, smallest 3-digit odd number 101। तो इनका सम क्या होगा, 1 + 0 + 1 का सम क्या होगा, 1 + 0 + 1 that is 2। तो here R will be 2. So 318 2, 318 2, A will be the right answer here. Question number 29, read the given statement carefully and select the correct option. Statement 1 is the sum of all the given number is 320. So here 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 20 कितना है, 8 टाइम्स, दैट इज 160। यहाँ पर 10 कितना है, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 टाइम्स 10 है, दैट विल बी
160. 160 plus 160 through 20. This is right here. So first statement is true. Second statement is saying the correct order of placing number on number line is this. 135, 295, 315. This is also true क्योंकि नंबर लाइन पर जो नंबर होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. स्मॉलेस्ट नंबर लेफ्ट साइड में और बिगेस्ट नंबर राइट साइड में. So this is correct. So both the statements are true. So both the statements are true. C is right answer here. Last question is which one of the following statement is incorrect? A 5-digit number subtracted from another 5-digit number never gives 4-digit number. जब 5-digit नंबर को 5-digit नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कभी भी 4-digit नंबर नहीं देता. कि 3-digit नंबर में हम 3-digit नंबर ऐड करते हैं तो इट विल गिव यू 4-digit नंबर. ओके, समटाइम्स it is saying sometimes, like I will add here 800 plus 400. दो 3-digit नंबर ऐड किए हमने, that is 1200. तो 4-digit नंबर आ गया. This can be correct sometimes, not always. अगर मैं 300 और 300 को ऐड करती हूँ तो 600 आएगा. Okay, it cannot be correct here. So sometime it can be correct, but not always. So this is true statement here. But A and B both are incorrect. So D is the right answer here. Both A and B are incorrect. So kids, here we learn about the chapter number plate. If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel KVS Coach. Don't forget to press bell icon to get notification for each new video. Thank you. Bye bye.